السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ چہارشنبے سے RTC ملازمین کی ہڑتال، انتظامیہ کے ساتھ بات چیت ناکام۔ ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، وزیر کمرشل ٹیکس کا انتباہ۔ متنازعہ تقاریر کرنے والوں اور مجرمانہ مقدمات رکھنے والوں کو ملک کے باوقار ایوارڈز دیے جانے پر صدر مجلس کا اعتراض، مؤثر طریقہ کار تشکیل۔ بیرسٹر اویسی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کر دی جائے، صدر جمہوریہ سے ریاستی BJP کے صدر کشن ریڈی کا مطالبہ۔ اور ظالم ماں نے آشنا کی خوشی کے لیے اپنے ہی 4 سالہ لڑکے کے ہاتھ پاؤں جلا دیے، نانی کی شکایت پر دونوں گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ RTC ملازمین کی تنظیموں اور انتظامیہ کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ ملازمین تنظیموں نے منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب سے ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بس بھون میں RTC کے MD سامبا سیوا راؤ کے ساتھ ملازم تنظیموں کے نمائندوں کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آیا ہے۔ بات چیت کے ناکام ہو جانے کے بعد ملازمین نے ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے RTC کے MD سامبا سیوا راؤ نے ملازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ ہڑتال سے دستبردار ہو جائیں۔ انتظامیہ ان کے مطالبات پر غور کر رہا ہے۔ سامبا سیوا راؤ نے کہا کہ ملازمین کو 43% فٹمنٹ دیا گیا تو کرایوں میں اضافہ پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کارپوریشن پہلے سے ہی نقصان کا شکار ہے، فٹمنٹ سے مزید بوجھ عائد ہوگا۔ سامبا سیوا راؤ نے کہا کہ 27% فٹمنٹ کے لیے کارپوریشن تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے وہ ملازمین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہڑتال سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مشکلات پیش نہ آ سکے، اس کے لیے انتظامیہ بھی ممکنہ اقدامات کرے گا۔ کمرشل ٹیکس کے ریاستی وزیر T سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت جویلری کے ٹیکس میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ سرینیواس یادو نے کہا کہ ریاست کے حدود میں چیک پوسٹ کو مستحکم بنایا جائے گا۔ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 نئے چیک پوسٹ بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ ریاست کے اندر 7 چیک پوسٹ قائم کیے جائیں گے۔ محکمے کے بقایا جات قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے۔ سرینیواس یادو نے بتایا کہ محکمے کی مخلوعہ جائیدادوں کو بھی جلد پور کیا جائے گا۔ వ్యాపారం ప్రాపర్గా చేసుకోండి, ట్యాక్స్ కూడా ప్రాపర్గా పే చేయండి। ఈరోజు జీరో వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు, రెండోది వ్యాపారం చేసుకొని ట్యాక్స్ ప్రాపర్గా కట్టని వాళ్ళ మీద మాత్రం కఠినంగా ఉండడం జరుగుతుంది। రెండోది మా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ అన్నీ వీలైనంత తొందరలో ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉన్నాయి, అవన్నీ వీలైనంత తొందరలో అవి కంప్లీట్ చేసుకొని మేము ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది। 2 చెక్ పోస్టులు సుమారు 80 కోట్ల రూపాయలతో ప్రపోజల్స్ ఇచ్చినాం। అది వీలైనంత తొందరలో మరి శాంక్షన్ అయ్యి అది పని కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది। رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک کے باوقار ایوارڈز دینے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار تشکیل دینا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں قومی میڈیا کے مختلف چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی اور ایل کے اڈوانی سے متعلق انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس پر قائم ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ انہیں دستور نے اظہار رائے کی آزادی دی ہے اور وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ ان کے اس بیان پر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ واجپئی کی متنازعہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے اور اڈوانی کے خلاف مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ درست ہے۔ بیرسٹر اویسی نے میڈیا کے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے یہ بیان دانستہ طور پر
सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिया है। सदर मजलिस ने कहा कि वो सिर्फ हक बात बयान करते हैं। मैंने जो बात कही है कल, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि एक लार्जर क्वेश्चन ये है, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में इतने बड़े जो ऑनर्स दिए जाते हैं, सिविलियन ऑनर्स, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और एक पब्लिक डिस्कशन हो। ये मुल्क के लिए ठीक होगा। रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट की रुकनीत को ख़त्म कर देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न और अडवाणी को पद्म विभूषण दिए जाने पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के रिमार्क्स दरअसल सदर जमहूरिया की तौहीन है। उन्होंने सवाल किया कि अगर वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला तो फिर क्या अकबर ओवैसी या वक़ार अहमद को यह अवार्ड मिलना चाहिए था। किशन रेड्डी ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी की रुकनीत को बर्खास्त करने के लिए सदर जमहूरिया और स्पीकर को भी मकतूब रवाना किया जाएगा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए वरंगल की एपी रयान फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरि ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मज़कूरा कंपनी को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए यूकलिप्टस दरकार है, क्योंकि ये तेलंगाना में सिर्फ 30% पाया जाता है और 70% के लिए आंध्रा से ताउन दरकार रहेगा। आंध्रा के वज़ीर आला ने के श्रीहरि को बताया कि इस सिलसिले में जायज़ा लेने के बाद वो फैसला लेंगे। तेलंगाना कौंसिल में कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला KCR से जायदाद की तफसीलात पेश करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टी न्यूज़ चैनल नमस्ते तेलंगाना, तेलंगाना भवन और इंतखाबात के लिए कहाँ से रकम लाई गई, इसकी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम में TRS के असासों पर शुबहात पाए जाते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR ने 2004 में अपनी आमदनी 85 लाख रुपए बताई थी, जबकि 2014 में 15 करोड़ रुपए बताई है। उन्होंने सवाल किया कि तहरीक चलाने वाले कायद के पास इतनी रकम कहाँ से आई, उसे मंजर आम पर लाना चाहिए। कांग्रेस रुकने कौंसिल ने कहा कि TRS के तरबियती प्रोग्राम के दौरान उसूलों, अखलाक, कानून और दस्तूर की दुहाई तो दी गई, लेकिन KCR को चाहिए कि वो दूसरी जमातों से TRS में शामिल होने वाले अरकान असम्बली को इस्तीफ़े दिलवाकर इंतखाबात का सामना कराएं और फिर अखलाक व शराफत की बात करें। 17 టైం పెరిగింది సారు. ఏం దందా చేసినావు సార్? అంతకనం 17 టైమ్స్ మీ ఆస్తులు పెరిగిపోయినాయి. అది అఫీషియల్. ఇంకా బేనామీ చాలా ఉన్నాయి మీకు. ఇవి ఎవరు మీకు చందాలు ఇచ్చినారు? నల్లధనమా, తెల్లధనమా, మంచిధనమా, విదేశాల నుంచి ఇచ్చిర్రా? అది బయట పెట్టండి. భవన్కు, ఛానల్కు, పేపర్కు, ఎలక్షన్ ఫండ్కు ఎవరు మీకు చందా ఇచ్చినారో వాళ్ళ పేర్లు బయట పెడితే అప్పుడు। कांग्रेस के एक और रुकने कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि TRS में सुनहरे तेलंगाना और हकीकी तेलंगाना के कायदीन में सर्द जंग जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR सिर्फ सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सुधाकर रेड्डी का कहना था कि उसूलों और शराफत की बात करने वाले KCR को पहले अपना मुहासिबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपोजिशन जमातों को हुकूमत का ढोल पीटने पर मजबूर कर रहे हैं। रियासती वज़ीर के श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वो तेलुगु देशम कायदीन के फालतू रिमार्क्स पर तबसरा करना ज़रूरी नहीं समझते। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जिन्हें अपने सियासी मुस्तकबिल की फ़िक्र सताती रहती है वो वही बेकार गुफ्तगू करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि TRS का तरबियती प्रोग्राम इंतहाई मालूमाती रहा। TRS के प्रोग्राम पर तनकीद करने वाली तेलुगु देशम पार्टी की तरह योगा के करतब दिखाने वाले के नाम पर 125 करोड़ रुपए की अराजी तो लिखकर नहीं दी गई। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो सनत नगर हल्के से ही ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। उर्दू मस्कन में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आला महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें तैयार की हैं। उन्होंने बताया कि अरब ममालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानी वतन वापस आकर यहीं सुकूनत पजीर होते हैं।
انہوں نے بتایا کہ ورنگل میں ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے حکومت NRIs کا سنگل ونڈوز کے ذریعے خیر مقدم کرے گی۔ انہوں نے TRS حکومت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں کہیں بھی ایسی حکومت نہیں پائی جاتی۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے محکمہ بلدیہ کے زونل کمشنر بالا سبرمنیم کے ساتھ شالی بنڈا کے علاقے کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شالی بنڈا کی سڑک پر ٹریفک جام ہونے کے علاوہ حادثات پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سڑک کی کشادگی ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے محکمہ بلدیہ سے کہا کہ وہ 4 دنوں کے اندر سڑک کی کشادگی کے لیے مارکنگ کا کام شروع کرے۔ انہوں نے مقامی افراد سے تعاون کی اپیل کی۔ اس موقع پر بلدیہ کے ٹاؤن پلاننگ عہدیدار اور سابق رکن بلدیہ محمد غوث بھی موجود تھے۔ محمد غوث صاحب کے سابق ڈپٹی فلور لیڈر کے ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ ہم دورہ کریں، اور ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ روڈ بینڈنگ کے کام کا فوری آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگ تعمیر کرے آگے، ہمارے کو کسی کے پرسنل کسی سے کوئی خاص سمجھ یا دشمنی نہیں کی۔ پلان میں جس کا حصہ جا رہا ہے اتنا حصہ بینڈنگ میں کی حفاظت ہو، یہ مقصد کے تحت دورہ کریں۔ اور زونل کمشنر صاحب کو پابند کیا گیا کہ 4 دن کے اندر آپ کم از کم مارکنگ شروع کر دیجیے، اس کے بعد لوگوں کو بلا کے کاؤنسلنگ کریں، بات کریں، جس کا جو معاوضہ ہے ان کا معاوضہ دے کر ان سے دکھا کر روڈ بینڈنگ کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ یہ روڈ سے کافی سہولت ہوگی۔ ٹریفک جام جو روزانہ ہو رہی ہے، مسلسل 2 گھنٹے 1 گھنٹہ لوگوں کو دیر تاخیر ہو رہی ہے جانے میں، وہ مسئلہ حل ہوگا۔ حادثات سے بھی لوگوں کی حفاظت ہوگی، حادثات سے بھی بچیں گے۔ یہ روڈ بینڈنگ ہے اور روزگار میں بھی انشاءاللہ زبردست اضافہ ہوگا۔ ہر قسم سے ہر آدمی کو اس کی سہولت ہوگی، رہنے والوں کو، جانے آنے والوں کو، تمام کو فائدہ ہوگا۔ میں امید کروں گا کہ اس علاقے کے لوگ اس مسئلے میں تعاون کریں گے تاکہ یہ ایریا کی مزید ترقی میں اضافہ ہو سکے۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اپنا سیاسی کھیل بند کر دینا چاہیے۔ سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ پارلیمانی سیکریٹریز کے عہدے کو برخاست کرنے کے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی، جو کہ عدالت کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کارروائی میں تاخیر ہوئی تو وزیر اعلیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست داخل کی جائے گی۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بات کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تاہم ریونت ریڈی نے کہا کہ سرینیواس یادو کو پہلے اپنے استعفے کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی نے دعویٰ کیا کہ پارٹی میں بغاوت کے خوف سے دوسری جماعتوں کے قائدین کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی سرینیواس یادو اور ٹی ناگیشور راؤ کی حالت بھی وجے شانتی، نریندرا اور کیشو راؤ جیسی ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر TRS حکومت کو ہریش راؤ گرانا چاہتے ہیں تو اس کی تائید کے لیے پولٹ بیورو کے اجلاس میں تلگو دیشم قائدین غور کر سکتے ہیں۔ చరిత్ర అనేది వాస్తవం. 2009లో హరీష్ రావు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలిసి ఆ పార్టీ మీద తిరుగుబాటు చేసి చీల్చి ఆ తెలంగాణ భవన్ అని ఏదైతే TRS ఆఫీస్ ఉందో దాన్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అప్పజెప్పడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. దానికి ఈటెల రాజేందర్ గారు ప్రత్యక్ష సాక్షి. ఇదే ఈటెల రాజేందర్ గారు శాసనసభ లాబీలలో ఇదే అంశాలు మా ముందర ప్రస్తావించిండు. హరీష్ రావు గారు వల్ల ఉన్న భయంతో ఏ రోజైనా హరీష్ రావు గారు బొక్క పెడతాడని ఉండే భయంతో ఇతర పార్టీల శాసనసభ్యులను కేసీఆర్ చేర్చుకుంటుండొచ్చు। سابق وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ KCR کے پاس مقننہ ارکان کی تربیت پر توجہ دینے کے لیے وقت ہے، لیکن پریشان حال کسانوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریدھر بابو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یا پھر وزیر زراعت نے اب تک غیر موسمی بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ نہیں کیا، یہاں تک کہ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کا اعلان بھی نہیں کیا گیا ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ وزیر فائنانس راجندر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کسانوں سے بھیگی ہوئی دھان خریدی جائے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے کہا کہ نئے دارالحکومت کے نام پر چندر بابو نائیڈو 2 جون کو پھر نیا ڈرامہ کرنے والے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم اپنی 1 سالہ حکومت کی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے 2 جون کو نئے دارالحکومت کے تعمیری کام کا آغاز کرتے ہوئے
आंध्र प्रदेश के अवाम को गुमराह करना चाहती है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में तकसीम की हिमायत और फिर आंध्रा में मुत्तहदा रियासत की बात करने वाले चंद्रबाबू नायडू अब तक सिर्फ मगरमच्छ के ही आंसू बहाते आए हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी रियासत के मामले में भी चंद्रबाबू नायडू की खामोशी बायस अफसोस है। रुकने कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने वाटर वर्क्स और बलदी ओहदेदारों की हमरा मंगलहाट के चिश्ती चमन राजदार खान पेट का दौरा किया, जहां ओहदेदारों की गफलत और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली के तासुब के सबब सीवरेज लाइन का काम तात्तुल का शिकार है। मकामी अवाम ने दारुस्सलाम से रुजू होकर बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी की थी, जिस पर उन्होंने रुकन कौंसल को दौरे की हिदायत दी। मकामी अवाम ने सड़कों पर बह रही गंदगी पर सख्त बरहमी जाहिर की। अल्ताफ रजवी को ओहदेदारों ने 1 माह में काम मुकम्मल करने का तयखुन दिया है। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल न होने की सूरत में मजलिस सख्त एहतजाज करेगी। नफ़ी मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आज राजदार खान पेट चिश्ती चमन ये तमाम इलाके में जो सीवर लाइन का, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का और रोड का जो रास्ते का मसला है, आज मुकम्मल दौरा किया गया वाटर वर्क्स के CGM, GM और फिर GHMC के E के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम है वो सीवर लाइन का काम मुकम्मल होना है, उसकी लाइन मुकम्मल होना है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन होना है। तो ये दोनों कामों के लिए इन दोनों महकमों को क्योंकि पब्लिक को सख्त नाराज़गी है कि यहाँ पे ये काम कई महीनों से रुका हुआ है और लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए इन ऑफिसर्स को ताकीद करते हुए इनको डेडलाइन दी गई है कि अगले 1 महीने के अंदर ये तमाम काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि रमज़ान करीब है और यहाँ के लोगों को मुसलसिल ये जो रास्ते पर RK पेट से जो चिश्ती चमन की रोड है ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा मुतासर है। नेपाल ज़लज़ले के दौरान माउंट एवरेस्ट से महफूज वापस लौटे को पहमा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। भारत और शेखर बाबू ने ज़लज़ले के दौरान माउंट एवरेस्ट के हालात बयान करते हुए बताया कि जिस वक्त ज़लज़ला आया उस वक्त वो 22,000 फीट ऊंचाई वाली चोटी पर मौजूद थे। दोनों ने बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की कोशिशों की सताइश की। एसी घाट छोटी मस्जिद के इलाके में मकामी मजलिस के ताउन से मेगा आरोग्यश्री कैंप का एहतमाम किया गया। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने इफ्तिताह किया। शहर के बड़े दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स इस कैंप में मौजूद थे, जहां रुजू होने वालों को दवाएं भी मुफ्त फराहम की गईं। अवाम की कसीर तादाद ने इस्तेफ़ादा किया। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस CV आनंद ने बताया है कि हर जुमे को किसी एक सरकारी दवाखाने में स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। कोंडापुर के एक सरकारी दवाखाने में स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए CV आनंद ने कहा कि साइबराबाद के तमाम सरकारी दवाखानों में इस प्रोग्राम को वसअत देने के लिए हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों से बातचीत की जाएगी। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में पीर और मंगल की दरमियानी शब तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 400 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने घरों की तलाशी के दौरान 20 मुश्तबा अफराद और 6 रोडी शीटर्स को तहवील में ले लिया। पुलिस ने 2000 गुड़म्बे के पैकेट्स भी जब्त किए हैं। DCP ने बताया कि गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के ज़ेर-ए-एहतमाम मक्का मस्जिद में जश्न विलादत मौलाए कायनात मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना कबूल बादशाह क़ादरी शत्तारी ने सदारत की। मेहमान मुक़र्रर मौलाना सैयद सैफुद्दीन असदक़ चिश्ती, सदर तहरीक पैगाम इस्लाम बिहार ने खुसूसी खिताब करते हुए फ़ज़ाइल व मनाक़िब मौला अली बयान किए। मेहमान मुक़र्रर के अलावा मकामी मशाइख़ और उलमा ने भी खिताब किया। लंगर हाउस पुलिस ने एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का अगवा करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
सर्कल इंस्पेक्टर जावेद ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर श्रवण कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विन कुमार चौधरी का अगवा करने वाले सदामा, मोली, नवीन और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर सदामा ने अपने साथियों के साथ दफ्तर में दाखिल होकर मुलाजिमीन की पिटाई की और उनके पार्टनरशिप के तनाज़े के लिए 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। इस पर अमल आवारी न होने पर ये लोग अश्विन कुमार को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर फरार हो गए। पुलिस ने इत्तला मिलने पर शहर की पुलिस को चौकस कर दिया। इस दौरान सदामा और उसके साथी मेहदीपट्टनम के इलाके में जारी तलाशी मुहिम को देखते हुए अश्विन कुमार को कार से उतारने की कोशिश कर रहे थे कि सब इंस्पेक्टर जाहिद ने सदामा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद की कार को जब्त किया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। एक जालिम मां ने अपने आशना की खुशी की खातिर अपने ही 4 साला बेटे के जिस्म के तकरीबन हिस्सों पर चरके देते हुए अजियतें पहुंचाईं। तफसीलात के मुताबिक खम्मम की रहने वाली रेशमा तलाकशुदा है। खम्मम के रहने वाले ही महेश के साथ उसके ताल्लुकात कायम हो गए। अपने आशना के साथ रेशमा हैदराबाद में रहने लगी थी, लेकिन रेशमा का बेटा अयान इन दोनों के बीच मसाइल की वजह बन रहा था, जिसके बाद जालिम रेशमा अपने आशना की खुशी की खातिर बच्चे को अजियतें देने लगी, जिसकी इत्तला रेशमा की माँ को मिली। रेशमा की माँ यानी बच्चे की नानी बच्चे को हासिल करने की कोशिश कर रही थी कि महेश बच्चे को देने के एवज रेशमा की माँ से 50,000 रुपये तलब करने लगा, जिसके बाद रेशमा की माँ हैदराबाद के मौला अली आ पहुँची और इन दोनों को अंधेरे में रखते हुए पैसे देने के बहाने मौला अली बुलवाया। जैसे ही अयान की नानी अयान को देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि मासूम के जिस्म पर ज़ख्मों के कई निशानात थे। उसकी चीखों पुकार के बाद मकामी अफराद जमा हो गए और रेशमा और महेश के चुंगल से बच्चे को छुड़ा लिया। इस वाक़े की शिकायत नरीनमेट पुलिस स्टेशन में की गई, जिसके बाद नरीनमेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया। अच्छी बात है, बोल मैं चल लेती ही जा रही हूँ, चल लेती जाती हूँ उतने में उन्हें बदमाश और एक जना बोकर है सो वाला मेडिकल शॉप में गया। इन्हें मेरे को देखते साथ ही जो है गाड़ी ऐसा पलटा रहा था। मैं बच्चे को देख के खूब रोली, रोते साथ ही मैं बेहोश होकर गिर गई। वहाँ 100 आदमी आ गए। आदमी अच्छा, अरे उस्ताद माँ का नवासा है, ये उस्ताद माँ का नवासा है बोले। वहाँ से 100 मार ले उस पकड़ लेके पुलिस स्टेशन को बुला। आप लोग आप डिमांड क्या है उसके पर अटेंड टू मर्डर केस? हाँ बोलिए आप। बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास भी अब परसों हमारे पुलिस स्टेशन में 2 आदमी बोले अच्छा हुआ तुम लोग फिर भी जल्दी करके बहुत से बहुत अच्छा करे ले लेके। हम 2 रोज से देख रहे रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बच्चे को सुला डालने के वास्ते। आदमी आने से वो मौका नहीं हुआ। 50,000 रुपये कैश दे के बच्चे को ले लेके जाओ बोल के बोले। पैसे नहीं दिए तो क्या करे, बच्चे को फुल चुरके गिर के लगा के दिए। तो कल के दिन, कल 4 तारीख थी, 4 तारीख के दिन हमारे अम्मी के नंबर पे फ़ोन आया। मैं ड्यूटी पे था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। तो मेरे अम्मी के नंबर पे कॉल करके बच्ची को ला रहे, पैसे दे दो बोल के बोले। अम्मी भी झूठ बात बोल के ठीक है पैसे ला रही बोल के अम्मी बोले। बोलने के बाद बच्चे को लेके आते कि पूरा जल का था बच्चा। आदमी सब लोग देख के जो है सो बच्चे को उठा लेके फिर वो पोटे को जो और वो लड़की और सबको पकड़ के जो है सो PS के हवाले करे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चारशंबे से RTC मुलाजिमीन की हड़ताल, इंतजामिया के साथ बातचीत नाकाम। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर कमर्शियल टैक्स का इंतबाह। मुतनाज़िया तकारीर करने वालों और मुजरिमाना मुकदमात रखने वालों को मुल्क के बावकार अवार्ड्स दिए जाने पर सदर मजलिस का एतराज़। बैरिस्टर ओवैसी की पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म कर दी जाए, सदर जमहूरिया से रियासती BJP के सदर किशन रेड्डी का मुतालबा। और जालिम मां ने आशना की खुशी के लिए अपने ही 4 साला लड़के के हाथ पांव जला दिए, नानी की शिकायत पर दोनों गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।